आता है पानी जाता है पानी, बाबा सुनाओ न इसकी कहानी। सागर की लहरें और नदियों की धारा, गर्मी से खौल उठा पानी बेचारा। गर्मी ने बदला पानी का चोला, पहले बहता था उड़ने दो बोला। पानी बना हवा, हवा ढोए पानी, बादल की किश्ती नदी आसमानी। बादल ने कर ली धूल से यारी, बूंदों में ढलाई वर्षा बौछारी। पानी फिर लौटा भीगी सब धरती, सागर और नदियों की गागरिया भर दी। पानी का चक्कर चक्कर में पानी, दिल में रख लेना इसकी कहानी। Hello everyone, it's Riya and welcome to the world of stories. You have just listened to poetry. So can you guess on what topic our story is about? Okay, let me tell you. Our story is about a cloud named Tultule. The name of our story is Friend. It is written by Pracheta Gupta. The beautiful illustrations and pictures in this book are made by Debabrata Ghosh. So are you excited to listen the story? Okay, let's begin. Tultule is the name of a cute and fluffy baby cloud. Fluffy means light in weight. She is very beautiful and soft like cotton. But she is also very naughty and cannot sit calmly. She keeps moving from one place to another in the vast blue sky. Other elderly clouds scold Tultule. They instruct her to sit quiet. Scold means टोकना. जो बड़े क्लाउड्स थे ना, वो तुलतुले को टोकते थे कि तुम एक जगह बैठ जाओ. बट जो तुलतुले था, तुलतुले laughs and says, I love floating around, I cannot sit idle. मुझे तैरना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आसमान में तैरना बहुत पसंद है, पर मैं स्थिर नहीं बैठ सकता. तुलतुले dances with even greater zest. Zest means enthusiasm or excitement. तुलतुले और मस्ती से डांस करती है. She loves to bath in the soft morning light. जो सुबह की धीमी धीमी सनलाइट होती है ना, उसमें उसे बाथ करना, नहाना नहीं, वो सनलाइट लेना बहुत अच्छा लगता था. In the afternoon, she basks in the sunlight. At night, Tultule looks like a fairy queen. We know she was very beautiful, so at night she looks like a fairy. With moon shining like a bindi and stars twinkling over her body like jewels. As you can see in the picture, there is a crown made of stars over her head. But what happens one day? One fine day, Tultule discovers a black spot on her body. अरे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई. Elders warn her, Tultule, you never listen to us. Now you shall disappear with the rain. जो एल्डर्स होते हैं, जो उसके बड़े होते हैं, वो उसे वार्न करते हैं, उसे चेतावनी देते हैं कि तुम हमारी बात कभी भी नहीं मानती हो, अब तुम बारिश बनकर गायब हो जाओगी. द ब्लैक स्पॉट spreads gradually. Tultule is afraid. She feels like crying because the spot is becoming bigger. She decides to take a dip in a river to get rid of the spot. अब जैसे जैसे वो स्पॉट बढ़ रहा था, तुलतुले को बहुत गंदा लग रहा था, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रिमेन ब्यूटिफुल. सो उसने डिसाइड किया कि वो एक नदी में जाकर डुबकी लगाएगी ताकि वो ब्लैक स्पॉट हट जाए. शी फील्स सैड. शी वॉन्ट्स टू रिमेन फेयर एंड ब्यूटिफुल. इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, राइट? वी ऑल वांट टू बी ब्यूटिफुल. Tultule starts moving faster in search of a river. She crosses the city blocks, passing through the village, forest and hills. But there is another problem. The faster she moves, the bigger becomes the black spot. अब वो क्या करे? जितनी तेज वो मूव कर रही थी, उतनी ही जल्दी वो ब्लैक स्पॉट बढ़ता जा रहा था. Alas, she reaches the river. Alas is a kind of expression. Finally, वो रिवर के पास पहुंच जाती है. By that time, she turns completely black. उस समय तक वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी. The river is also dry. She asked the river, 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 where is your water? I wanna wash away my black spot. There is no cloud, no rain, so I have no water. Please shower some rain on me, pleads the river. Hearing this, Tultule begins to cry. Oh,
I cannot come down as rain because that will be the end of me. The river smiles and says, Don't you worry, dear. I am the most reliable friend. I shall not let you disappear. Trust me. Tultule drops down as rain. Like a true friend, the river embraces the rain. Embrace means गले लगाना या वेलकम करना. एक सच्चे दोस्त की तरह जो रिवर थी ना, उसने रेन को गले लगा लिया. Slowly the river smells with water to happily move towards the ocean. हम सबको पता है रिवर लास्ट में जाके ओशन में मिलती है, तो जब वो रिवर पानी से भर जाती है वो खुशी खुशी ओशन के पास जाके मिल जाती है. As the river meets the ocean, a new तुलतुले is born. अरे वाह, अब तो एक नया तुलतुले पैदा हो गया है. Even more soft, more fluffy and more beautiful. अब आपको समझ आया क्लाउड कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है? चलो एक बार फिर से जल्दी से साथ में समझते हैं. हमने देखा कि तुलतुले से जो बड़े क्लाउड्स थे ना, वो तुलतुले को ज़्यादा तेज से दौड़ने से, इधर उधर भागने से टोकते थे. वो ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि हमने आगे स्टोरी में देखा ना कि जब तुलतुले बहुत तेज से उड़ रही थी तो उसके ऊपर का जो ब्लैक स्पॉट था वो तेज़ी से बढ़ रहा था. आजकल तो वैसे ही बादल बहुत लगते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जब बादल काले कलर के हो जाते हैं तो इसका मतलब है थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है. यानी जब तुलतुले के ऊपर ब्लैक स्पॉट था, यानी वो अब जो क्लाउड से वाटर बन जाएगा, यानी वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब क्लाउड ना इधर से उधर मूव करते हैं तो उन्हें हवा लगती है. तो हवा लगती है तो हमें तो ठंडा लगता है, यानी उस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है. तो जो वो क्लाउड्स हैं वो वाटर वेपर है सारा. तो जब वो वाटर वेपर पे एयर लगती है तो वो ठंडा होता है, यानी जब वो ठंडा होगा तो वो पानी की फॉर्म में नीचे आता है, यानी जिसे हम रेन कहते हैं. तो ऐसे रेन होती है. हमने देखा कि एक क्लाउड से बारिश कैसे होती है. अब हमें ये भी तो समझना है कि एक क्लाउड बनता कैसे है. हमने स्टोरी के लास्ट में क्या पढ़ा था? एक नया तुलतुले पैदा हुआ था. तो वो कैसे हुआ? उससे पहले हमने देखा कि रिवर पूरी सूखी हुई थी. जब उस पर तुलतुले ने बारिश की तो वो रिवर भर गई, और वो जब ओशियन के पास गई तो एक नया तुलतुले पैदा हो गया. ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस पर सनलाइट पड़ रही थी ना, तो जो उसका वाटर था वो कुछ कुछ वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ रहा था. क्योंकि जब हमारे ऊपर सनलाइट पड़ती है तो हमें गर्मी होती है ना, तो वैसे ही पानी पे भी जब सनलाइट पड़ती है तो उसे गर्मी होती है और वो पानी वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है. ऐसा हमने पता है कब देखा है? जब गर्मियों के सीज़न में फर्श पे पानी गिर जाता है तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाता है. आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता होगा? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस पर गर्मी पड़ती है तो वो पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है. वैसे ही रिवर पर जब सनलाइट पड़ रही थी तो उसका वाटर वेपर की फॉर्म में आसमान में हमारे एटमॉस्फेयर पे इकट्ठा हो रहा था, और वो इकट्ठा होते होते बहुत सारा वाटर वेपर एक साथ मिल जाता है और उसके बाद एक नया तुलतुले पैदा हो जाता है, यानी एक नया क्लाउड बन जाता है. ऐसे हमारा क्लाउड बनता है. तो अब समझ आया आपको कि क्लाउड बनता है, फिर वाटर की फॉर्म में वो नीचे आता है, यानी रेन बनता है, उसके बाद फिर से क्लाउड बनता है, यानी ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है. इसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, इसमें लगभग 71% वाटर है, और वो वाटर इसी फॉर्म में पूरी साइक्लिक फॉर्म में. एक साइकिल क्या होता है? साइकिल का पहिया एकदम गोल होता है, उसका कोई एंड नहीं होता है. वैसे ही ये पूरी प्रोसेस हमेशा चलती रहती है. पहले बादल बनते हैं, उसके बाद वो रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं, फिर वो वाटर वेपर बन के फिर बादल बनते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है. इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं. तो हमने स्टोरी सुनी, उसके बाद हमने वाटर साइकिल भी समझी. अब आपके लिए एक टास्क है. आपको क्या करना है? इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको जो भी समझ आया कि कैसे एक क्लाउड बनता है, कैसे रेन होती है, उसको आपको एक डायग्राम की फॉर्म में आप कैसे भी समझा सकते हैं उसमें कि बादल कैसे बन रहा है, उसके बाद वो वाटर वेपर बन के वो आसमान में जा रहा है, उसके बाद जब वो ठंडा हो रहा है तो वो पानी बन के नीचे आ रहा है. आपको इसे एक डायग्राम की फॉर्म में बना के अपने टीचर को भेजना है. थैंक यू.